Good morning, friends. Was there any homework given? नहीं दिया था कल? ठीक है, कल का और आज का मिला के साथ में दे देंगे. So we were in BRS, right? And we had discussion on how to decide which timing difference is to be added and which timing difference is to be deducted. For that, first you need to understand the starting point. First you need to identify the starting point from where you are starting to prepare the BRS. And then accordingly you will decide whether a particular timing difference is to be added or it is to be deducted. चार टाइप के टाइमिंग डिफरेंसेस की बात हुई है. चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक्स इशूड बट नॉट presented for payment, debit given in passbook but not recorded in cash book, and credit given in passbook but not recorded in cash book. तो ये चार टाइप के जो टाइमिंग डिफरेंसेस है इनको या तो ऐड करना है या तो लेस करना है, बट दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट. और वो डिसाइड करने के लिए हम लोगों ने एक हाथ वाला ये मेथड समझा जिसमें गलती के चांसेस लगभग नहीं के बराबर है, इसमें गलती नहीं होती. चलो एक बार चारों फटाफट ट्राई करते हैं. सब लोग मेरे साथ ट्राई करो. योर राइट हैंड इज कैश बुक एंड योर लेफ्ट हैंड इज पासबुक. सो CB बैल, PB बैल, BAL BAL, CB BAL is the starting point. Check deposited but not credited by bank. CB BAL goes up. I'm going from CB BAL to PB BAL less. Checks issued but not presented for payment. CB BAL goes down. I'm going from CB BAL to PB BAL add. Debit given in passbook but not recorded in cash book. Passbook balance goes down. I'm going from CB BAL to PB BAL less. Credit given in passbook but not recorded in cash book. Passbook balance goes up. I'm going from CB BAL to PB BAL add. बराबर है. Now CB BAL, PB BAL, BAL BAL, and PB BAL is the starting point. Check deposited but not credited by a bank. CB BAL goes up. I'm going from PB BAL to CB BAL add. Checks issued but not presented for payment. CB BAL goes down. PB BAL to CB BAL less. Debit given in passbook but not recorded in cash book. PB BAL goes down. PB BAL to CB BAL add. Credit given in passbook but not recorded in cash book. PB BAL goes up. PB to CB less. Correct है? CBOD, PBOD, ODOD. CBOD is the starting point. Checks deposited but not credited by a bank. CBOD goes down. I'm going from CBOD to PBOD add. Checks issued but not presented for payment. CBOD goes up. CBOD to PBOD less. Debit given in passbook but not recorded in cash book. PBOD goes up. CBOD to PBOD add. Credit given in passbook but not recorded in cash book. PBOD goes down. CBOD to PBOD less. Last, CBOD, PBOD, ODOD, and PBOD is the starting point. Checks deposited but not credited by a bank. CBOD goes down. I'm going from PBOD to CBOD less. Checks issued but not presented for payment. CBOD goes up. PBOD to CBOD add. Debit given in passbook but not recorded in cash book. PBOD goes up. PBOD to CBOD less. Credit given in passbook but not recorded in cash book. PBOD goes down. PBOD to CBOD add. जम गया? प्रैक्टिस की कल? पक्का? घर वालों के फोन आने चाहिए. क्या किया सर आपने, हमारे बच्चे पागल हो गए, ऐसे ऐसे कर रहे कुछ. तो कल कौन से सम्स हुए? 1 to 6. चलो लाइन से सारे सम सॉल्व करने ही अपने को. थर्ड सम. On 31st December 2021, my passbook showed an overdraft of 12,500. On the scrutiny of the following were noticed. पासबुक में ओवरड्राफ्ट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट PBOD है. टेक पेंसिल इन योर हैंड. पेंसिल लो हाथ में. CBOD, PBOD, ODOD, and PBOD is the starting point. Checks amounting to 2,100 were paid into bank on 29th December, of which only 175 was credited by a bank in the passbook.
Checks deposited but not credited by bank. Cash book overdraft goes down. I'm going from PBOD to CBOD less. Checks of 4,000 were issued, of which only a check of 600 was presented for payment. Checks issued but not presented for payment. CBOD goes up. PBOD to CBOD add. There is the debit of 150 for interest and rupees 50 for bank charges in the passbook, which have not been entered in my books. Debit given in passbook but not recorded in cash book. Passbook overdraft goes up. PBOD to CBOD less. रुपीज 250 डेबिटेड टू बैंक इन माई बुक्स हैज बीन ओमिटेड टू बी बैंक्ड. पहले तो आप इसका इंटरप्रिटेशन समझो क्या है. रुपीज 250 डेबिटेड टू बैंक इन माई बुक्स बोल तो कैश बुक में 250 रुपए डेबिट किए. कैश बुक में डेबिट बोल तो क्या रे, रिसीट या पेमेंट? रिसीट ना. कैश बुक में 250 रुपए डेबिट एंट्री की है, बोल तो डिपॉजिट की एंट्री की है 250 की, बट वो ना ओमिटेड टू बी बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए. कैश बुक में एंट्री की 250 की रिसीट की, बट वो बैंक में जमा ही नहीं किया, तो बैंक में पासबुक में पैसा जमा होगा क्या? तो इट इज एज गुड एज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. तो क्या होगा मेरे को बताओ. कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, रिसीट रिकॉर्ड हो गया ना कैश बुक में, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया. PB to CB less. Problem number 3rd, page number 27. Bank reconciliation statement. As on 31st December 2024. Particulars rupees. What is the starting point, guys? Overdraft as per passbook. How much is it? 12,500. आई थिंक ऐड का एक ही आइटम है, बाकी तीनों लेस है ना. ऐड checks issued but not presented for पेमेंट. टोटल चेक कितने वैल्यू के इशू हुए थे?
4,000, उसमें से कितने क्लियर हो गए? 600। तो कितने अमाउंट के चेक्स अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए? तो बीइंग सिंगल अमाउंट यू कैन राइट इट इन आउटर कॉलम डायरेक्टली। ऐड में एक ही आइटम है, सब टोटल 15,900 बरोबर। लिस्ट नंबर 1, checks deposited but not credited by bank। टोटल कितने वैल्यू के चेक डिपॉजिट हुए? उसमें से कितने के जमा हो गए? 175। तो कितने वैल्यू के जो नहीं हुए अभी तक? इनर कॉलम 1925। लिस्ट नंबर 2, क्या है लिस्ट नंबर 2? डेबिट गिवन इन पासबुक। बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट कितना है? 150। और क्या है? बैंक चार्जेस 50। नंबर 3, amount debited in cash book but omitted to be banked। omitted to be banked का मतलब बैंक में डिपॉजिट करना ही भूल गए। हाउ मच इज इट? 250 ना? आउटर कॉलम 2375। Starting point was overdraft as per passbook. So what will be the end point? बोलो कितना आता है? 13,525। डन। सबका हो गया। अभी एक काम करो, आप लोग सॉल्व नहीं करना है आपको। फोर्थ प्रॉब्लम के सिर्फ ऐड और लेस तुम खुद होके आइडेंटिफाई करो इंडिपेंडेंटली। फोर्थ प्रॉब्लम में जो टाइमिंग डिफरेंसेस दिए हुए हैं वो ऐड होंगे या लेस होंगे ये आइडेंटिफाई करो।
मैं कंफर्म करता हूँ आपका करेक्ट है या नहीं, फिर सॉल्व करेंगे अपन। फोर्थ सम, हो गया। चलो पहले आइडेंटिफाई कर दे कि तुमने एडलेस जो आइडेंटिफाई किया है वो बराबर है कि गलत है। लेट्स फर्स्ट कंफर्म द आंसर, देन वी विल डू इट टुगेदर।
On 31st March 2021, the passbook of a trader showed a credit balance of 1565. What do you mean by credit balance in passbook? It is positive balance. So CB bal, PB bal, bal, but PB bal is the starting point. Checks issued but not presented for payment. CB bal has gone down. PB to CB less. Bank charges rupees 35 for bank charges, and Z directly deposited 816 into bank account which were not entered in cash book. दोनों ट्रांजेक्शंस अलग अलग है. बैंक चार्ज 35 फॉर बैंक चार्जेस, इसकी वजह से क्या हो गया? पासबुक का बैलेंस कम हो गया. आई एम गोइंग फ्रॉम पीबी टू सीबी एड, तो 35 रुपीज ऐड होंगे. Z डायरेक्टली डिपॉजिटेड 816 इनटू बैंक अकाउंट, उसकी वजह से क्या हो गया? पासबुक का बैलेंस बढ़ गया. आई एम गोइंग फ्रॉम पीबी टू सीबी लेस. तो सेकेंड एडजस्टमेंट में पहला अमाउंट ऐड है, दूसरा अमाउंट लेस है, तो बाजू में लिखते तो वैसे लिखना ऐड ऑब्लिक लेस. Two checks, one from A for 515 and another from B for 1250 were collected in the first week of April, although they were banked on 25th March. These are checks deposited but not credited by bank. CB bal has gone up. I'm going from PB to CB. 25 मार्च को जमा किए बट बैंक में जमा हुए अप्रैल में. इसका मतलब कैश बुक में एंट्री हो गई मार्च में, 25 मार्च को ही, बट पासबुक में अप्रैल में आई है एंट्री. तो अपन 31 मार्च का भी एरएस बना रहे हैं, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है. एंड आई एम गोइंग फ्रॉम पीबी टू सीबी एड. इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक. इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, पीबी बैल गोज अप, पीबी टू सीबी लेस. आया क्या बराबर? जमा एड लेस. चलो बनाओ फॉर्मेट. फोर्थ प्रॉब्लम, पेज नंबर 27. Problem number 4, page number 27. Bank reconciliation statement as on 31st March 2024. What is the starting point? Balance as per passbook. How much is it? 1565. Add number 1. Bank charges debited in passbook but not recorded in cash book. बोलो. Amount is 35. और क्या है? Checks deposited but not credited by bank. नाम दिए, इसलिए डिटेल दे सकते अपन. A 515,
और बी 1250। और कुछ है ऐड में? आउटर कॉलम कितना? 1800। सब टोटल व्हाट इज द सब टोटल? 3365 लेस नंबर वन। checks issued but not presented for payment. Here also, as the details are available, we can write the name of the parties to whom checks were issued. X 600, Y 384. List number 2. Direct deposit by Z in bank. कितना अमाउंट डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है? 816. And one more item to be deducted, interest allowed by bank. कितना है? बोलो बेटा। 18 आउटर कॉलम ना। स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से एंड पॉइंट क्या आएगा? Therefore balance as per cash book. बोलो। 1520। 1520 आया? कहाँ पे बोल रहा? बैंक चार्जेस से लिखा है मैंने। अच्छा पूरा लिखा है। लिखने का पूरा। पेपर चेक करने वाले को इम्प्रेस करना है अपने को। ढूंढते हुए आना चाहिए वो कौन है ये। यस, एनी प्रॉब्लम? फिफ्थ वाले का सेम। एडलेस आइडेंटिफाई करो। दोनों दिए हुए बैलेंसेस उसमें। फिफ्थ में कौन सा लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक या पासबुक? हाँ, कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट लेके ऐड या लेस सिर्फ आइडेंटिफाई करो आप। जस्ट आइडेंटिफाई ऐड और लेस।
कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट लिया ना? चलो कंफर्म करते, चलो लास्ट 1 मिनट। अपने को दोनों बैलेंसेस दिए, कैश बुक का भी और पासबुक का भी, बट आपने बोला स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया आप? कैश बुक। तो कैश बुक में क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है ना? बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश वाज बैलेंस्ड ऑन 31st March 2021, इट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 5000। निगेटिव है ना रे, पॉजिटिव कहाँ है?
बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश, बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश बोल तो मुकेश के बुक्स में जो बैंक अकाउंट है बोल तो कैश बुक, तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है, सीबीओडी पीबीओडी ओडीओडी एंड सीबीओडी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक ओवरड्राफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट है. चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सीबीओडी गोज अप, चेक्स इशूड, चेक इशू हुए तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक विल इंक्रीज, so CBOD has gone up, CBOD to PBOD less, first one less. Checks deposited but not collected by bank, CBOD goes down, CBOD to PBOD add. Interest on term loan debited, बोलो, PBOD goes up, I'm going from CBOD to PBOD add. Bank charges debited in passbook, PBOD goes up, CBOD to PBOD add. लास्ट वाला जो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग कंफ्यूजिंग एडजस्टमेंट है. लास्ट, एन अमाउंट ऑफ 50,000 रिप्रेजेंटिंग पेमेंट ऑफ चेक issued by Mukesh is wrongly credited to the account of Mukesh by bank in their bank statement. भगवान करे ऐसी बैंक सबको मिले. क्या हुआ है समझो एग्जैक्टली. An amount of 50,000 representing payment of check issued by Mukesh. बैंक ने, मुकेश ने पेमेंट में जो चेक इशू किया है बोल तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है. कितने का चेक है? 50,000. चेक वॉज इशूड बाय मुकेश, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया. बैंक ने सच्ची बोला तो डेबिट करना चाहिए था ये चेक, गलती से ना बैंक ने 50,000 रुपए डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिए, तो उसकी वजह से पासबुक का ओवरड्राफ्ट 50,000 से कम हो गया. गाइस समझ के लो, बहुत इंटरेस्टिंग है. कैश बुक का ओवरड्राफ्ट 50,000 से बढ़ गया, पासबुक का ओवरड्राफ्ट 50,000 से कम हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया? 1,00,000 हो गया एग्जैक्टली. और कहां से कहां जा रहा हूं मैं? सीबीओडी टू पीबीओडी लेस, 1,00,000 रुपए लेस होंगे, 1,00,000 रुपीज विल बी डिडक्टेड. फिर से सब लोग मेरे पास ध्यान दो. इट वॉज अ चेक इशूड बाय मुकेश इन अ पेमेंट, पेमेंट किया है मुकेश ने, लिखा है क्लियरली, चेक वॉज इशूड बाय मुकेश. चेक जब इशू किया है तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, बट बैंक ने उसको ना डेबिट करने के बजाय, पेमेंट तो डेबिट करना चाहिए था, बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया. बैंक ने पैसा कम करने के बजाय बैलेंस बढ़ा दिया, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट 50,000 से कम हो गया. डिफरेंस कितना हो गया अब ये? 1,00,000. आई एम गोइंग फ्रॉम सीबीओडी टू पीबीओडी लेस, 1,00,000 रुपए लेस होंगे. समझा क्या? चलो सॉल्व करते हैं, बनाओ. फिफ्थ प्रॉब्लम पेज नंबर 27. मुकेश बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st March 2024. करें स्टार्ट. Overdraft as per cash book, how much is it? बोलो रे. 5,000. ऐड, ऐड में क्या है सबसे पहले? चेक्स,
कितना 12,000 12 नहीं 20 है। गुड मॉर्निंग 20,000 और क्या है डेबिट गिवन इन पासबुक but not recorded in interest on कितना है इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 10,000 और क्या है बैंक चार्जेस वो कितने हैं 250 बराबर। और कुछ है ऐड में नहीं आउटर कॉलम 30,250 सब टोटल 35,250 35,250 लेस नंबर 1 बोलो बेटा checks issued but not presented for payment 12,000 wrong credit given by bank for check issued towards a payment पेमेंट के लिए चेक इशू किया था बैंक ने गलती से क्रेडिट दे दिया आपने को कितना रुपया ऐड लेस करना था ये 1 लाख आउटर कॉलम 1,12,000 before you write the answer I want all of you to go to the table which I had given you yesterday मैंने कल आपको एक टेबल दिया था बना के एडलेस वाला जाओ सब लोग उस टेबल में गए क्या वो टेबल के नीचे एक नोट लिखी थी हमने इंपॉर्टेंट नोट क्या था वो नोट after giving effects addless effects as above if the end point works out to be negative figure then if the starting point is positive balance end point will be overdraft and if starting point is overdraft end point will be positive balance नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नॉर्मल में स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओवरड्राफ्ट है तो एंड पॉइंट क्या आता है अरे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अरे नॉर्मली जब स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट होता है तो एंड पॉइंट क्या होता है ओवरड्राफ्ट ही होता है ना अभी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो एंड पॉइंट विल बी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लेकिन अगर आप यहां देखोगे तो एडलेस इफेक्ट्स देने के बाद में सब टोटल तुम्हारा 35,250 है उसमें से लेस होना 1,12,000 तो
एंड पॉइंट नेगेटिव फिगर आएगा ना. तो in this case, if starting point is positive balance, end point will be overdraft. If starting point is overdraft, end point will be positive balance. तो यहाँ क्या है starting point? Overdraft है तो end point will be positive balance. So end point is going to be balance as per passbook. पॉजिटिव को पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक लिखा तो भी हो जाएगा. कितना आएगा बताओ? 76. उतना दिया क्या प्रॉब्लम में? देखो दिया हुआ है प्रॉब्लम में ना. 76,750. समझ में आया ये पॉइंट? डन. चलो सेवेंथ सम. यहां पे भी दोनों बैलेंसेस दिए, पासबुक और कैशबुक के. क्या लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट? पासबुक लेते अब स्टार्टिंग पॉइंट. हाँ, पासबुक को स्टार्टिंग पॉइंट लो और एडलेस आइडेंटिफाई करो. सम नंबर सेवेंथ. टेक पासबुक एज स्टार्टिंग पॉइंट. सम नंबर 7.
करते कंफर्म आंसर पहले, शुरुआत क्या की है तुमने? पासबुक है ना? CB val, PB val, val, and PB val is the starting point. She has issued checks amounting to 80,000, out of which 32,000 were only presented for payment. So remaining are not presented. Checks issued but not presented for payment. CB val has gone down. PB to CB less. She received a check of 5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit in the bank. कैश बुक में रिसीट की एंट्री कर दी उसने, चेक मिल गया बोल के, बट उसने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो बैंक में पैसा जमा हुआ क्या? नहीं. तो कैश बुक बैलेंस हैज गॉन अप. पीबी टू सीबी ऐड. A check of 22,000 deposited by her has not been cleared yet. Same. CB val has gone up. PB to CB add. Mr. Gupta deposited an amount of 15,700 in her bank which has not been recorded by her in cash book yet. Direct deposit by Mr. Gupta. PB balance has gone up. PB to CB less. आया क्या? Bank has credited an interest of 1,500 while charged rupees 250 as bank charges. Interest credited by bank. PB balance goes up. I'm going from PB to CB less. And interest charged by bank. Bank charges charged by bank. Passbook balance goes down. PB to CB add. तो पहला आइटम लेस है, दूसरा आइटम ऐड है. बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 1.5 लाख रुपए. 1.5 लाख. ऐड. नंबर 1. चेक्स. check received and recorded in cash book but not yet deposited in bank. But not yet deposited in बैंक. कितना अमाउंट है वो? 5,000. Then checks deposited but not credited by bank. What is its amount? 22,000. फिर बैंक चार्जेस debited in passbook but not recorded in cash book. $250. Outer column 27, 250. Subtotal 177, 250.
less. Checks issued. But not presented for payment. 80,000 minus 32,000 बराबर कितना आता है 48,000. Direct deposit by Gupta in bank कितना है 15,700. और एक एनालिस आइटम interest credited in passbook but not recorded in cash book. 1,500. Outer column 65,200. What will be the end point? Balance as per cash book. बोलो 1,12,050. उत्तर दिया है प्रॉब्लम में दिया हुआ है कैश बुक का बैलेंस. इज दैट टैलीड? एट सम. मेरी जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लो आप पूरा, आएगा तुमको. एट. सब लोग इंडिपेंडेंटली ट्राई करो, आएगा तुमको.
करे स्टार्ट। चलो चेक करो बेटा, बताओ क्या क्या किया आपने, मेरे को बोलो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है? ओडी एज पर कैश बुक 6340. Interest on overdraft 160 is entered in passbook. So PBOD has gone up. CBOD to PBOD add. तो 160 ऐड होंगे। किए क्या ऐड? बैंक चार्जेस 400 debited in passbook only. It will also be added because it will increase the passbook overdraft. CBOD to PBOD add. Check issued but not cashed prior to 31st December. What will happen? CBOD goes up, CBOD to PBOD लेस, तो ये लेस होने वाला है 11,68,000, ये लेस फिगर है। चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, CBOD हैज गॉन डाउन, CBOD टू PBOD ऐड, कितना ऐड करना है? 22,17,000. Interest on investment collected by bank and credited in passbook, PBOD has gone down, CBOD to PBOD less, तो ये 12 लाख लेस होंगे। ऐड का सब टोटल आउटर कॉलम में 22 17 560 ना, सब टोटल 22 23 900, करेक्ट। सॉल्व नहीं किया दिखता यार, बोल नहीं रहे, आया क्या? फिर 2368। अब एंड पॉइंट निगेटिव फिगर आ रहा है, एंड पॉइंट निगेटिव फिगर आ रहा है, तो ओपनिंग स्टार्टिंग क्या था? ओडी था ना, ओडी एज पर कैश बुक था ना। So now what will happen? Balance as per passbook, how much? Balance as per passbook, yes, 144,100. किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। एंड पॉइंट नेगेटिव फिगर आ रहा है ना 144,100, तो स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट है, तो एंड पॉइंट विल बी पॉजिटिव बैलेंस। इंटरेस्ट, देख इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वी आर गोइंग फ्रॉम CBOD टू PBOD ऐड। वैसे ही बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस की वजह से बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, CB टू PB ऐड, बराबर। प्रॉब्लम नंबर 12th. Prepare a BRS of Shri Hari as on 31st March 2021. Balance as per passbook 10,000. Bank collected a check of 500 on behalf of Shri Hari but wrongly credited to Shri Vari's account. CB Bal, PB Bal, Bal Bal and PB Bal is the starting point. Bank collected a check of 500 on behalf of Shri Hari but wrongly credited it to Shri Vari's account. बैंक कलेक्टेड चेक बोलते हो हमने डिपॉजिट किया रहेगा, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, बट बैंक ने ना हरी की जगह वारी को क्रेडिट कर दिया, तो हरी के अकाउंट में क्रेडिट आया ही नहीं, तो हरी का पासबुक का बैलेंस बढ़ा क्या? हम कहां से कहां जा रहे हैं? PB टू CB ऐड। बैंक recorded a cash deposit of 1589 as 1598. कितना कैश डिपॉजिट किया था? 1589, तो कैश बुक का बैलेंस 1589 से बढ़ गया, लेकिन बैंक ने वो गलती से 1598 रिकॉर्ड कर दिया, तो बैंक का बैलेंस 1598 से बढ़ गया, तो 9 रुपए से ज्यादा है ना पासबुक का बैलेंस,
पीबी टू सीबी लेस, समझा? विड्रॉवल कॉलम ऑफ पासबुक अंडरकास्ट बाय 100। बेटा अंडरकास्ट होना बोल तो क्या? कास्टिंग एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आता है ना। अंडरकास्ट, ओवरकास्ट। अंडरकास्टिंग बोल तो कम टोटल लिया गया, ओवरकास्टिंग मतलब ज्यादा टोटल लिया गया है। तो पेमेंट साइड का टोटल कम लिया गया है, विड्रॉवल कॉलम बोल तो पेमेंट साइड का टोटल कम लिया गया बोल तो पेमेंट कम दिखाया गया। पेमेंट कम दिखाया गया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। पेमेंट कम दिखाया गया जबकि पेमेंट ज्यादा हुआ था, बट पेमेंट कम दिखाया गया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। आई एम गोइंग फ्रॉम सीबी टू पीबी, एड, हाँ, पीबी टू सीबी लेस, लेस, समझा क्या? Credit balance of 1500 on page 5 was recorded on page 6 as debit balance. बहुत झमेला इस प्रॉब्लम में। क्रेडिट बैलेंस था पेज नंबर 5 पे 1500 रुपए। क्रेडिट बैलेंस बोल तो पॉजिटिव बैलेंस था, पासबुक के नहीं है सारे डिटेल्स। पॉजिटिव बैलेंस था 1500 रुपए पेज नंबर 5 पे। अगले पेज पे लिखते तो वो गलती से निगेटिव बैलेंस लिखा गया डेबिट बोल के। तो 1500 का पॉजिटिव रहने के बजाय 1500 का निगेटिव हो गया, बोल तो कितने से कम हो गया? 3000 से कम हो गया। अरे भाई 1500 से कैसे कम हुआ? 1500 पॉजिटिव से 1500 निगेटिव जाना है तो 3000 का डिफरेंस होगा ना रे। 1500 से पहले जीरो जाता है, जीरो से फिर -1500 तक जाएगा ना। तो 3000 से कम हो गया है पासबुक का बैलेंस। पीबी टू सीबी एड, 3000 रुपए ऐड होंगे। पेमेंट ऑफ चेक ऑफ 350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। 350 रुपए का पेमेंट पासबुक में डबल रिकॉर्ड हो गया। एक बार तो होना ही था, एक बार ज्यादा का हो गया। पासबुक का बैलेंस 350 से कम हो गया, 700 से कम नहीं, 350 से। 350 एक बार तो आना ही है ना रे, दूसरी बार एक्स्ट्रा हुआ है तो 350 से पासबुक का बैलेंस कम हो गया। वी आर गोइंग फ्रॉम पीबी टू सीबी, एड। पासबुक शोड अ क्रेडिट फॉर अ चेक ऑफ 1000 डिपॉजिटेड बाय श्री वारी। ले, पहले गलत क्रेडिट दिया वारी को, अब वारी का चेक है वो अपने अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। तो क्या होगा? पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, पीबी टू सीबी लेस। है ना? कौन सी बैंक है इतना सब झमेला करके रखा है? प्रॉब्लम नंबर 12, पेज नंबर 29। श्री हरि किसको बोलते? हम्म? कौन से भगवान? कृष्ण भगवान को हरि बोलते? मैं जहां तक जानता हूँ विष्णु भगवान को श्री हरि बोलते। अच्छा, श्री वारी किसको बोलते? नाही रे, ती विठ्ठलाची वारी वेगळी आहे। भगवान का नाम वारी, एक भगवान का नाम है वारी जो बहुत फेमस है। मराठी में कुछ और नाम है, बट जहां पे वो टेम्पल है वहां पे उनके लैंग्वेज में वारी नाम से बुलाते हैं। तिरुपति बालाजी, अपन बालाजी भगवान बोलते हैं, वहां पे श्री वारी नाम है उनका। भगवान की बहुत मजा है तिरुपति वाले भगवान की। बोला ना मैंने आपको उस दिन, वहां काउंटिंग रुकता ही नहीं, इतने पैसे चढ़ाए जाते। हम्म? मालूम नहीं हुआ।
इंडिया में इतने यूनिक यूनिक चीजें है ना, खासकर भगवान के मंदिर वगैरह जो है। कभी तो भी फुर्सत में किस्सा सुनाऊंगा तुमको। हाँ, हाँ 5 घंटे है ना। 5 घंटे में से लेकिन कम से कम आधा टाइम तो होने दो पहले। ये टॉपिक अपना हो जाता है आज। नहीं, इसमें का एक पार्ट है जो अभी तक सिखाया ही नहीं है मैंने, वो अपन पोस्ट लंच सेशन में लेंगे। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बैलेंस एज पर पासबुक। हाउ मच इज इट? $10,000 ना? एड नंबर 1, check collected but wrongly credited to another customer's account. Amount is 500 रुपए। Then credit balance wrongly carried forward as डेबिट बैलेंस। बोलो 3,000 रुपए। Payment of check of 350 was recorded twice in passbook. एक्सेस पेमेंट ऐड होगा नहीं है? एक्सेस पेमेंट recorded in passbook. बोलो बेटा। 350 ना? ऐड हो गया क्या सब? ऐड के आइटम्स हो गए। आउटर कॉलम ऐड का सब टोटल 38, सब टोटल 13,850। लेस excess deposit recorded by bank। कितना एक्सेस दिया उन्होंने? 9 रुपए। लेस नंबर 2, अंडरकास्टिंग of withdrawal column of passbook।
कितना आएगा? 100 रुपये। और क्या है? रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, गलत क्रेडिट दे दिया बैंक ने। हाउ मच? और कुछ है? 1109। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था रे? देयरफॉर बैलेंस एज पर वन टू 741, 12741। आया सबका? समझा सबको? कुछ डाउट है तो पूछो बेटा। पक्का? नो डाउट? अंडरकास्टिंग बोल तो कम टोटल लिया गया। पेमेंट अगर कम लिया गया है, पेमेंट का टोटल, तो कम पेमेंट रिकॉर्ड हुआ ना। पेमेंट कम रिकॉर्ड हुआ बोल तो बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। कैश बुक में तो पेमेंट बराबर गया है। कितना अंडरकास्टिंग है? 100 रुपए से। समझ समझ 5,000 रुपए का पेमेंट है, तो कैश बुक से कितना गया? 5,000। बट पासबुक से 4,900 गया ना, कि तो कम टोटल लिया गया है। तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा है 100 रुपए से, कि तो पेमेंट कम दिखाया गया वहां पे। पेमेंट कम दिखाया गया बोल तो बैलेंस ज्यादा दिख रहा ना। तो पीबी बैल टू सीबी बैल लेस। समझा क्या? नहीं? हाँ। 15th प्रॉब्लम, 15th एग्जाम प्रॉब्लम है, एग्जाम में आया हुआ है। Prepare BRS of Messrs RK Brothers on 30th June. Bank passbook had a debit balance of 25,000. मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है। CBOD, PBOD, ODOD. PBOD is the starting point. Take pencil in your hand. A check worth rupees 400 directly deposited into bank by the customer, but no entry was made in cash book. Direct deposit in bank. Passbook overdraft will decrease. Passbook overdraft goes down for direct deposit by customer. PBOD to CBOD add. Out of checks issued rupees 34,000, checks amounting to 20,000 only were presented for payment. Checks issued but not presented for payment. CBOD goes up. CBOD बढ़ जाएगा. PBOD to CBOD add. A check for 4,000 received and entered in the cash book, but it was not sent to the बैंक. कैश बुक में रिसीट की एंट्री हो गई है, बट बैंक में वो आया ही नहीं चेक। कैश बुक में रिसीट की एंट्री हो गई तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम होगा ना। ओवरड्राफ्ट है रे भाई, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट। चेक रिसीव हुआ है, डिपॉजिट रिसीट आपने लिए, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया। आई एम गोइंग फ्रॉम पीबीओडी टू सीबीओडी लेस। Checks worth rupees 20,000 had been sent to bank for collection, but the collection was reported by bank as under. Checks collected before 30th June was 14,000 और बाकी के दो चेक जो है वो जुलाई में कलेक्ट हुए। हम कौन से डेट का बीआरएस बना रहे? 30th जून का। तो 20,000 में से 14,000 ही जमा हुए ना, बचे हुए 6,000 जुलाई में हुए, तो 30 जून को वो बचे हुए 6,000 के जमा नहीं हुए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. CBOD goes down, PBOD to CBOD less. Bank made a direct payment of 600 which was not recorded in cash book. Direct payment by bank.
PBOD goes up, PBOD to CBOD less. Same next one. Interest on overdraft charged by bank not recorded in cash book. Interest on overdraft charged by bank बोला तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया. PBOD to CBOD less. Bank charges worth ₹80 have been entered twice in the cash book. बैंक चार्जेस डबल लिख दिए गए कैश बुक में, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट 80 से बढ़ गया. एक बार तो आना ही था बट डबल लिख दिए गए तो एक बार ज्यादा का हो गया. कैश बुक ओवरड्राफ्ट हैज गॉन अप. PBOD to CBOD add. Insurance charges for 70 directly paid by bank was not entered at all in the cash book. पासबुक ओवरड्राफ्ट हैज गॉन अप. डायरेक्ट पे हुआ है ना बैंक से, कैश बुक में आया नहीं. PBOD to CBOD लेस. तो पहला ऐड है, दूसरा लेस है. अब आखिरी वाला आप बताओ मेरे को. क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक was undercast by 2000. क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बोल तो कौन सी साइड है ना. क्रेडिट साइड बोल तो कौन सी साइड, क्रेडिट साइड बोल तो कौन सी, तो बोलता क्रेडिट साइड. अरे ढोंबिया, क्रेडिट साइड बोल तो कौन सी साइड, पेमेंट साइड. हाँ, तो पेमेंट साइड कम लिया गया है 2000 से कैश बुक का. तो कैश बुक में पेमेंट कम कंसीडर हुआ, कैश बुक का पेमेंट कम कंसीडर हुआ तो बोल तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट उतने से कम दिख रहा है जबकि ज्यादा दिखना चाहिए था. ₹2000 से पेमेंट कम दिख रहा है कैश बुक में, पेमेंट कम हुआ कैश बुक से, पेमेंट कम हुआ है तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट उतने से कम दिख रहा ना रे, नहीं तो ज्यादा होता ना ओवरड्राफ्ट. पेमेंट हुआ था 10,000 का बट कैश बुक में दिखाया गया 8,000. तो कैश बुक का पासबुक में पेमेंट कितना गया, पूरे 10,000. तो पासबुक ओवरड्राफ्ट कितने से बढ़ गया, 10,000 से. बट कैश बुक में वो 8,000 ही दिखाया, तो कैश बुक ओवरड्राफ्ट बढ़ा 8,000 से, तो कैश बुक ओवरड्राफ्ट 2,000 से कम हो गया ना. PBOD टू CBOD लेस, ₹2,000 लेस होंगे. प्रत्येक का हाँ, कौन सा 10,000, क्या बोल रहा. अरे वो एग्जाम्पल के लिए मैंने 10 और 8 बोला रे. हाँ, बैंक चार्जेस ₹80 कैश बुक में डबल रिकॉर्ड हो गए, तो कैश बुक ओवरड्राफ्ट ₹80 से बढ़ गया ना. लेस कैसे होगा, PB टू CB है ना. कहां से कहां जा रहे हैं आप. हाँ, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ा है, पासबुक का नहीं. देख 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 देख, बैंक चार्जेस पहले कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, पासबुक में. पासबुक में ₹80 से बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, कैश बुक में डबल रिकॉर्ड हो गया तो कैश बुक का 160 से बढ़ गया. कहां से कहां जा रहा हूं मैं, कहां से कहां जा रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. हाँ, तो फिर क्या होगा, ऐड. आया या नहीं. मेरी जरूरत है कि करते सॉल्व, क्या लिखना तो है सिर्फ. अब लिखो लिखो, आएगा तुमको.
चलो बताओ, अमाउंट्स बोलो मेरे को। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 25,000। क्या क्या ऐड किया तुमने? हम्म। डायरेक्ट डिपॉजिट कितना? 400। फिर 14,000। फिर कितना? 80, 80 रुपीज। फिर हो गया। तीन ही आइटम से ऐड के 14,480। सब टोटल 39,480। लेस में क्या क्या है? 4,000, 6,000, 70 एंड 2,000। बरोबर है क्या? नहीं, 600, 1,600, 70, 2,000। दो एडजस्टमेंट गायब कर दी उसने बीच के। 70 बोला तूने, 600 1600 नहीं बोला ना? फिर दो हो गए ना, 600 1600। बोलो। आउटर कॉलम 14,000। सो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 25,210। 25,210 आया क्या? आया सबका? समझा सबको? सारे एडजस्टमेंट्स क्लियर है? क्या ऐड क्या लेस? आई वॉन्ट यस फ्रॉम एवरीवन। जो अच्छे से यस बोलेंगे वो अभी आने वाले अटेम्प्ट में पक्का पास हो जाएंगे। मैं जो बोलता हूँ वो सच होता है। डन। लास्ट सम बिफोर लंच 14 सम। बिफोर टाइम होगा, डोंट वरी, छोटा सा सम है। 14 सम थोड़ा दिमाग का काम है। Following are the cash book and passbook of Deepak for the months of March 2021 and April 2021. Reconcile balance of cash book as on 31st March 2021. ध्यान से सुनो। अपन पिछले 2-3 लेक्चर में बीआरएस सीखे, बहुत अच्छे से अपन ने प्रैक्टिस की, प्रॉब्लम भी सॉल्व किए बहुत सारे। अब करीब करीब 10 एक प्रॉब्लम तो पक्का हो गए, बराबर है। अब इस प्रॉब्लम में क्या हुआ है ना, कैश बुक दिया है मार्च का और पासबुक दिया है अप्रैल का। कैश बुक दिया है मार्च का और पासबुक दिया है अप्रैल का। और अपने को बोला है कि 31 मार्च का रिकंसिलेशन करना है। 31 मार्च का। टाइमिंग डिफरेंसेस डायरेक्टली नहीं दिए प्रॉब्लम में, अपने को ढूंढने पड़ेंगे। 1 मिनट का टाइम देता हूं, थोड़ा सा सोचो कैसे करने का। सोचो और बताओ, बहुत सिंपल है वैसे, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। डिफिकल्ट नहीं है, इट इज सिंपल, वेरी इजी, वेरी सिंपल। थोड़ा दिमाग लगाओ। जो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया ना हमने, फर्स्ट 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 लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट प्रॉब्लम, उसमें क्या था, सेम मंथ का कैश बुक और सेम मंथ का पासबुक था। तो वहां आपने अनकॉमन आइटम्स कैसे ढूंढे? कॉमन आइटम्स को टिक कर दिया था।
अब यहाँ पे क्या हुआ है ना कि कैश बुक मार्च का है एंड पासबुक अप्रैल का है। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे करने का बताओ मेरे को। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। बहुत सिंपल है बेटा। जो कैश बुक में मार्च में है और पासबुक में अप्रैल में है, बोल तो छो मार्च में पासबुक में नहीं थे ना। जो कैश बुक में मार्च में है और पासबुक में अप्रैल में आए, इसका मतलब ये वो मार्च में पासबुक में नहीं आए ना। तो दिए हुए दोनों में के जो कॉमन रहेंगे वो मार्च के लिए अनकॉमन रहेंगे। दिए हुए कैश बुक और पासबुक में अलग अलग मंथ के ये दोनों, एक अप्रैल का है एक मार्च का है, इन दोनों के कॉमन बोल तो मार्च के अनकॉमन रहेंगे ना। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल तुम अगर देखो तो कैश बुक के डेबिट में आखिरी के दो अमाउंट्स देखो, 66,000 एंड 1,30,000 है क्या। ये कहाँ पे आए, पासबुक के क्रेडिट में आए ना। बट कब आए, अप्रैल में आए, बोल तो चाहिए मार्च में नहीं थे ना वहां पे पासबुक में। तो मार्च के लिए टाइमिंग डिफरेंस हो गए। वैसे ही कैश बुक के क्रेडिट साइड में देखो, 3 लाख रुपए जो नीचे पासबुक के क्रेडिट में दिख रहा है, हाँ पासबुक के डेबिट में दिख रहा है 3 लाख, शेखर वाला चेक। इसका मतलब क्या हो गया, ये अप्रैल में आया है, बोल तो मार्च में नहीं था ना ये पासबुक में। समझा क्या या नहीं। नहीं, मेरे को बता, कैश बुक के डेबिट में रिसीट साइड में, कैश बुक के रिसीट साइड में 25 मार्च को सुदेश से आया हुआ चेक है 66,000 का। हम्म, और 31 मार्च को पंकज से आया हुआ 1,30,000 का है। ये पासबुक में कब आए, अप्रैल में आए, बोल तो मार्च में क्लियर नहीं हुए ना। सो दीज आर चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक फॉर द मंथ ऑफ मार्च। कब क्रेडिट हुए वो, अप्रैल में, लेकिन मेरे को 31 मार्च का बीआरएस बनाने का है। तो 31 मार्च को जमा हुए हुए क्या ये नहीं है, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक हो गई ये दोनों। समझा। वैसे ही क्रेडिट साइड में देख, कैश बुक के क्रेडिट में शेखर का चेक है 3 लाख रुपए का। वो शेखर का चेक 3 लाख रुपए का पासबुक में अप्रैल में आया हुआ है, 12 अप्रैल को। हमने पेमेंट कब किया था, 24 मार्च को। बैंक से कब गया, 12 अप्रैल को गया। इसका मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है ये 31 मार्च को। बस ये तीनों आइटम से सिर्फ जो रिकंसिलेशन में आएंगे, कितना सिंपल था। समझा या नहीं। हाँ, कॉमन आइटम्स को टिक करो यहाँ पे। यहाँ के कॉमन आइटम्स बोलते हैं एक्चुअली अपने लिए अनकॉमन है मार्च के लिए। तो 66,000 1,30,000 इनको टिक करो। वैसे ही वो 3 लाख 3 लाख को टिक करो।
चॉइस है तुम्हारे पास कहाँ से कहाँ जाना है, दोनों बैलेंस है अपने पास, कैश बुक भी है पासबुक भी है, कहाँ से जाना है, कैश बुक से। लिखो प्रॉब्लम नंबर 14 पेज नंबर 30। प्रॉब्लम नंबर 14 पेज नंबर 30। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट of Deepak. Bank reconciliation statement of Deepak as on 31st March, as on 31st March 2024. क्या बोले आप, कहाँ से शुरुआत करना है? बनाओ फॉर्मेट, छोटा सा ही फॉर्मेट है, 5-6 लाइन कहलाएगा। पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। बैलेंस एज पर कैश बुक, बोलो। 6 lakhs, 6,26,000. Add checks issued but not presented for payment. लिखना है तो डेट के साथ पार्टी का नाम लिख सकते हो। 24 मार्च को चेक इशू किया था, किसको? शेखर। कितने अमाउंट का था वो? 3 लाख। सब टोटल 926। लेस checks deposited but not credited by bank. कितने कितने के थे ये चेक्स? डेट और ये बोलो ना। 25 मार्च। किससे आया हुआ चेक था ये? सुदेश। 66,000 एंड 31st मार्च पंकज 1,30,000। आउटर कॉलम therefore balance as per passbook.
कितना? 7,30,000। चेक कर लो पासबुक का अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस इतना चाहिए क्या? पासबुक का ओपनिंग बैलेंस इतना ही है क्या? अप्रैल का ओपनिंग बोल तो मार्च का क्लोजिंग है ना? हो गया टैली? समझा सबको? अभी बेटा जो प्रॉब्लम्स बचे हैं, एक तो इसमें के कुछ प्रॉब्लम्स जो लेंदी है बड़े वाले, वो एग्जाम में आए हुए सम्स है जो क्लास में सॉल्व करने पड़ेंगे। 10 सम होमवर्क देता हूँ अगले लेक्चर में, 10th वाला एकदम बेसिक है, वो आप आज होमवर्क करना बाद में। 10th अगले लेक्चर में बोलता हूँ वो। और बचा हुआ पोर्शन अपन आज इस टॉपिक का कंप्लीट कर लेंगे। एक कंसेप्ट है रिवाइज्ड कैश बुक का, वो अभी तक सिखाया नहीं है मैंने, तो वो मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाता हूँ। खाना खा के आ जाओ। सी यू एट 2 o'clock। थैंक यू।